So we were discussing about the data types and the space consumed by them. So we had just seen कि character types require 1 byte in the memory. Integers require 2 bytes in the memory. ठीक है. Short integers require 1 byte in the memory. ये जो value दी हुई है, these are in bits. ठीक है. तो ये जो 8 and 16 दिया, that is in bits. So if we convert it into byte, तो short int को 1 byte required होता है and long int को required होता है आपका 32 bits means 4 bytes. float को 4 byte required होता है, double को 8 byte required होता है and long double is 10 bytes. ठीक है. So this is the space consumed by the various data types that are available in C. So char को कितना 1 byte, int को 2 byte, short int को 1 byte, long int को 4 byte, float को 4 byte, double को 8 byte and long double को 10 byte. So this is the memory consumption of each and every data type. Now यहाँ पे इसकी range दी हुई है ये, what range of values do these data types support. ठीक है. Now इसको समझने के लिए character को 8 bits assign होती हैं. यहाँ पे दिया हुआ है characters are assigned 8 bits. Now you have to understand the concept of signed and unsigned. Now if you see signed की जो range है that is -128 to 128 से लेके 0 आएगा, फिर यहाँ से 127. ठीक है. तो अगर आप ये देखोगे टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज विल बी 256. और अगर आप अनसाइंड कैरेक्टर की बात करते हो तो 0 से 255. तो अगर आप 0 से 255 देखोगे टोटल तो ये भी कितनी हो जाएंगी 256. Now if you see how this 256 figure is coming, 8 bits are used by characters. So 2 to the power of 8 is equal to 256. So that means अगर आप 2 bits मतलब एक bit या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, तो 8 bits को लेके टोटल कितने combinations बनेंगे? It will be 2 to the power of 8, that is 256. So a character can have 256 different values. ठीक है. अब बात आती है कि आपकी साइंड में ये रेंज आधी क्यों हो जाती है और अनसाइंड में रेंज डबल क्यों हो जाती है. उसका रीजन क्या होता है कि जब आपका ये कैरेक्टर है, सपोज इट इज ऑफ 8 बाइट्स. ओके, 8 बिट्स. तो 8 बिट्स ये मैंने बना दी. नाउ हियर दिस सबसे जो लेफ्ट मोस्ट बिट है that is your signed bit. Signed bit. 1 bit is reserved as a signed bit in case of signed characters and integers. क्योंकि इसे sign को store करने के लिए भी आपको 0 या 1 एक bit की जरूरत पड़ेगी. Now normally if this value is 0, signed bit में 0 होता है तो value positive है, और signed bit अगर 1 है, 0 means positive and 1 means negative. ठीक है. तो signed bit can be either 0 or 1. 0 means positive and 1 means negative. तो सबसे लेफ्ट मोस्ट जो बिट है that is reserved for the signed bit, and remaining जो आपकी 7 बिट बचेंगी, अब signed की बात कर रहे हैं हम, तो the 7 remaining bits are used for storing the data. Used for डेटा. ठीक है. तो अब एक बिट तो पहले ही 8 बिट में से एक बिट तो ऑलरेडी आपकी किस में यूज हो गई, साइन को स्टोर करने में. तो हमारा डेटा सिर्फ कितनी बिट्स में स्टोर होगा, 7 बिट्स में. सो नाउ हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ 7 बिट्स. सो इट विल बी 2 to the power of 7 which gives 128. So this is how the range of signed character is -128 से लेके 127. ठीक है. तो अगर आप देखो इन ऑल -128 से लेके 0 फिर से लेके 127, अगर आप इनको टोटल देखोगे तो ये भी 256 टोटल कॉम्बिनेशंस बनेंगे. ठीक है. सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ साइंड कैरेक्टर. नाउ जब हम
अनसाइंड कैरेक्टर लेंगे तो अनसाइंड कैरेक्टर में क्या होगा, देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ साइन। अनसाइंड का मतलब साइन है ही नहीं, ठीक है। सो ऑल द 8 बिट्स विल बी यूज्ड फॉर डेटा। कोई भी, क्योंकि से जब साइन है ही नहीं, सारे नंबर्स पॉजिटिव ही होंगे तो साइन को स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दिस वन बिट दैट वाज बीइंग कंज्यूम्ड बाय फॉर स्टोरिंग द साइन is also available for the data, and therefore the range of data will become now 2 to the power of 8, which will become 256. तो दो 256 values आप store कर सकते हो। So therefore the range of unsigned character is 0 से लेके 255, which again makes a total of 256 characters, ठीक है। This is about characters. Now next we'll talk about integers. Now short int, जैसा कि मैंने आपको बताया था, short int क्यों यूज होता है, टू सेव मेमोरी। सपोज मेरे को क्लास की स्ट्रेंथ स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल चाहिए, ठीक है, क्लास स्ट्रेंथ या फिर एज ऑफ अ पर्सन या फिर मार्क्स ऑब्टेन्ड। नाउ ये सारी वैल्यूज ऐसी हैं जो हमारी 100 हो जाएंगी, 150 हो जाएंगी, 200 हो जाएंगी, 250 हो जाएगी, इससे ज्यादा वैल्यू नहीं होएगी, ठीक है। उसके लिए हम अननेसेसरी 2 बाइट्स वेस्ट करें, इट डजंट मेक सेंस। तो अगर एज एक हमें वेरिएबल स्टोर करना है, एज मतलब किसी की स्टोर करनी है, if I have 2 options, I can declare it of integer type or I can declare it of short int type, ठीक है। शॉर्ट इंट एज, मेरे पास 2 ये ऑप्शंस हैं, या तीसरा और एक और ले लेते हैं हम, लॉन्ग इंट एज, ठीक है। इंटीजर 3 तरह के होते हैं, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग। नाउ हम एज को किसी भी टाइप का डिक्लेयर कर सकते हैं, बट व्हाट इज द डिफरेंस, अगर हम एज को इंटीजर टाइप डिक्लेयर करते हैं तो इसको 2 बाइट्स मेमोरी में लगेंगी। अगर शॉर्ट इंट डिक्लेयर करते हैं, इट विल ओनली कंज्यूम 1 बाइट इन द मेमोरी, एंड इफ वी डिक्लेयर इट ऑफ लॉन्ग टाइप देन इट विल कंज्यूम 4 बाइट्स इन द मेमोरी। अब आप एक चीज समझ रहे हो कि एज की वैल्यू 110 से ज्यादा नहीं होगी। Why are you wasting space in that case? Short int is sufficient for storing the variable age. Similarly, अगर हमें क्लास की स्ट्रेंथ लेनी है, the class strength एक कॉलेज में, हमारे कॉलेज में क्लास की स्ट्रेंथ 60 है। अब अगर मेरे को क्लास की स्ट्रेंथ स्टोर करनी है या कितने स्टूडेंट्स आज प्रेजेंट हैं क्लास में, तो व्हाट टाइप ऑफ वेरिएबल शुड आई चूज? आई शुड चूज द शॉर्ट इंट डेटा टाइप, बिकॉज 1 बाइट में ही हमारा काम हो जाएगा, बिकॉज इससे बड़ी 255 से ज्यादा क्लास की स्ट्रेंथ नहीं हो सकती है। सो शॉर्ट इंट इज में भी काम हमारा चल जाएगा, ठीक है। नाउ इंट डेटा टाइप की रेंज कितनी होती है आपकी, अगर हम साइंड लेंगे तो -32,768 से लेके 32,767, और अनसाइंड के केस में इट विल बी फ्रॉम 0 to 65535। नाउ अगेन इंटीजर्स में भी यही कंसेप्ट होता है। इंटीजर्स को कितनी बाइट्स अलॉट होती है? 2 बाइट्स। So suppose this is byte 1, ये again it is divided into 8 bits, ठीक है, और ये भी आपका 8 bits में divided है, ठीक है। Now इसमें भी क्या होता है, the leftmost bit is reserved for sign. So अगर ये total 16 bits थी, 16 bits में से 1 bit is reserved for sign, so remaining फिर कितनी बिट्स बची हमारे पास? रिमेनिंग वी आर लेफ्ट विथ ओनली 17 बिट्स, सॉरी वी आर लेफ्ट विथ 15 बिट्स। 15 बिट्स आर लेफ्ट फॉर डेटा। अगर 1 बिट हमारी साइन के लिए रिजर्व हो गई तो बची हुई 15 बिट्स विल बी यूज्ड फॉर डेटा। एंड इफ यू फाइंड 2 to the power of 15, 15 बिट से कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे? 2 to the power of 15, क्योंकि से every bit can be either a 0 or a 1, तो 2 to the power of 15 से जब आप कैलकुलेट करोगे the value will come to be 32,768. So this is what the value means. ये वैल्यू कहाँ से आ रही है?
15 जो बिट्स आपकी डेटा स्टोर करने के लिए यूज हो रही हैं. सो इफ यू फाइंड 2 to the power of 15 यू विल कम टू दिस फिगर. ठीक है. अब अनसाइंड इंटीजर ले लेते हैं. दैट मीन्स कि हम ये वाली जो बिट अभी साइन के लिए यूज कर रहे थे, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड. ये हम बिट को भी डेटा के लिए यूज करेंगे. तो क्या हो जाएगा उस केस में? all the 16 bits will be used for storing the data. All 16 bits will be used for data. So अगर आप निकालोगे कितने आप पॉसिबल वैल्यू स्टोर कर सकते हो, इट विल बी 2 to the power of 16, बिकॉज अब हमारी वो साइन बिट जो यूज हो रही थी वो भी नहीं यूज होगी. सो ऑल 16 बिट्स विल बी यूज्ड फॉर स्टोरिंग द डेटा. एंड जब आप 2 to the power of 16 निकालोगे, it will come to be 65536. ठीक है. अब ये आपकी अगर आप देखो 0 से लेके 65535 कितने टोटल नंबर्स बनते हैं? 65536. 1 ऐड करोगे क्योंकि इसे 0 भी इसमें ऐड हो जाएगा. ठीक है. सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू सी हियर इज कि हमारा इंटीजर्स एंड कैरेक्टर्स आर अवेलेबल इन 2 फॉर्म्स, साइंड एंड अनसाइंड. नाउ साइंड अगर आप कभी साइंड और अनसाइंड कब लेना है आपको डेटा टाइप? द टाइप ऑफ वैल्यू यू आर स्टोरिंग. अगर आपकी कोई ऐसी वैल्यू है जो नेगेटिव कभी हो ही नहीं सकती है, क्लास की स्ट्रेंथ, एज, मैंने बताया आपको, किसी की सैलरी, ये नेगेटिव में नहीं होगी, वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, देन यू कैन टेक द वेरिएबल ऑफ अनसाइंड टाइप. और अनसाइंड लेने से आपका क्या हो जाता है? एक बिट जो आपकी वेस्ट हो रही थी साइन को स्टोर करने के लिए, वो भी डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होती है. सो द रेंज इज डबल्ड. ठीक है. लेकिन अगर कोई वैल्यू ऐसी है जो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, सपोज आपको किसी चीज का टेम्परेचर स्टोर करना है कि कितना टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर कैन बी अ पॉजिटिव वैल्यू आल्सो, अ नेगेटिव वैल्यू आल्सो. या और भी कोई वैल्यू है जो आपकी इंटीजर टाइप है, दे कैन assume a positive and negative value as well. तो आपको उन वैल्यूज को उन वैल्यूज को आपको कैसा डिक्लेयर करना पड़ेगा? साइंड टाइप. सो दैट इज योर चॉइस. मतलब सी आपको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है. यू कैन डिक्लेयर अ वेरिएबल ऑफ साइंड इंटीजर, अनसाइंड इंटीजर, साइंड कैरेक्टर, अनसाइंड कैरेक्टर. एंड इंटीजर्स भी आपको 3 डिफरेंट फॉर्म में मिलते हैं: शॉर्ट इंट, इंट एंड लॉन्ग इंट. ठीक है. नाउ डिपेंडिंग ऑन कितना बड़ा आपको नंबर स्टोर करना है, यू कैन चूज द वन ऑफ देम. शॉर्ट इंट की रेंज इतनी होती है, तो अगर आपका नंबर अनसाइंड के केस में ये रेंज है और अनसाइंड के केस में ये रेंज है, तो अगर आपकी कोई वैल्यू ऐसी है, इफ अ वेरिएबल इज होल्डिंग अ वैल्यू विद इन दिस रेंज, यू कैन टेक शॉर्ट इंट. तो 1 बाइट से ही आपका काम चल जाएगा. अगर आपकी वैल्यूज इंटीजर की रेंज ये होती है, दिस इज फॉर साइंड एंड दिस इज फॉर अनसाइंड. सो इफ यू वांट, जैसे किसी सपोज आपको स्टोर करना है कोई अमाउंट, तो अमाउंट के लिए आप ये भी ले सकते हो. बट इफ द अमाउंट एक्सीड्स दिस रेंज, देन यू हैव टू गो फॉर लॉन्ग. लॉन्ग इंटीजर की रेंज इतनी होती है आपकी. ठीक है. सो लॉन्ग इंटीजर इज बहुत बड़े इंटीजर स्टोर करने के लिए यू कैन टेक लॉन्ग इंटीजर्स. बस आपको ये ध्यान देना है कि इंटीजर्स को, शॉर्ट इंट को 1 बाइट अलॉट होती है मेमोरी में, इंट को 2 बाइट्स अलॉट होती है, और लॉन्ग इंट को 4 बाइट्स अलॉट होती है मेमोरी में. ठीक है. सो एज पर द रिक्वायरमेंट यू शुड चूज द अप्रोप्रिएट डेटा टाइप. नेक्स्ट है आपका फ्लोट टाइप. फ्लोट इज ऑल्सो अवेलेबल इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स. फ्लोट का जैसे कि मैंने बताया था, प्रिसिशन 6 प्लेसेस आफ्टर डेसिमल होता है. 6 प्लेसेस आफ्टर डेसिमल. तो अगर आपको और ज्यादा प्रिसिशन के साथ किसी नंबर को स्टोर करना है, देन यू कैन यूज डबल डेटा टाइप. एंड उससे भी बड़ा अगर आपको नंबर स्टोर करना है, देन यू कैन गो फॉर लॉन्ग डबल. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? फ्लोट को 4 बाइट्स अलॉट होती है मेमोरी में, डबल को 8 बाइट्स अलॉट होती हैं, एंड लॉन्ग डबल को 10 बाइट्स अलॉट होती है. ठीक है. सो यू नीड टू रिमेम्बर दिस. आपको याद रखना है कि जो प्राइमरी डेटा टाइप्स हैं, प्राइमरी मींस बेसिक डेटा टाइप्स जो मशीन डायरेक्टली सपोर्ट करता है, वो
ये टाइप्स होते हैं कैरेक्टर. सो आई जस्ट ड्रॉ एंड शो यू. एक रफली जो अभी तक हमने पढ़ा वो हम देख लेते हैं. प्राइमरी डेटा टाइप्स. ना प्राइमरी डेटा टाइप्स में एक तो हमने पढ़ा कैर, फिर एक पढ़ा हमने इंट, और एक था आपका फ्लोट. कैर के दो वेरिएशंस थे, साइंड कैर, अनसाइंड कैर. इंट के तीन वेरिएशंस थे, शॉर्ट इंट, इंट एंड लॉन्ग इंट. फ्लोट के तीन वेरिएशंस थे, फ्लोट, डबल एंड लॉन्ग डबल. नाउ साइंड कैरेक्टर को 1 बाइट अलॉट होता है मेमोरी में, अनसाइंड को भी 1 बाइट अलॉट होता है मेमोरी में, शॉर्ट को 1 बाइट अलॉट होता है मेमोरी में, इंट को 2 बाइट अलॉट होते हैं मेमोरी में, लॉन्ग को 4 बाइट अलॉट होते हैं, फ्लोट को भी 4 बाइट अलॉट होते हैं, डबल को 8 बाइट एंड लॉन्ग डबल को 10 बाइट्स. ठीक है. नाउ ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं. कैरेक्टर इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग कैरेक्टर्स, इंटीजर इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग इंटीजर टाइप वैल्यूज, एंड फ्लोट फॉर स्टोरिंग रियल नंबर्स. तो रियल नंबर्स को स्टोर करने के लिए, मतलब कि डेसिमल प्लेसेस में जब वैल्यू होती है, यू यूज फ्लोट टाइप. इंटीजर्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग इंटीग्रल वैल्यूज. ठीक है. एंड कैरेक्टर्स, कैर इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग कैरेक्टर वैल्यूज. तो ये आपके बेसिक डेटा टाइप्स हो गए, प्राइमरी डेटा टाइप्स या बेसिक डेटा टाइप्स, एंड कितनी बाइट्स वो कंज्यूम करते हैं, उनके किस फॉर्म में अवेलेबल है, साइंड एंड अनसाइंड. नाउ यहाँ पे मैंने अभी मेंशन नहीं किया है, लेकिन शॉर्ट इंट एंड लॉन्ग इंट आर ऑल्सो अवेलेबल इन साइंड as well as unsigned versions. ठीक है. So this is about the various primary data types that are available in C. Now coming back to the topic that we were studying, data types जो हम पढ़ रहे थे. Now how do we declare a variable? और variables declare करने की जरूरत क्यों होती है? ठीक है. Now for this we'll just write a small program कि हम ये data types क्यों पढ़ रहे हैं. Suppose I want to write a program to add 2 numbers. ठीक है. Now एक प्रोग्राम आप लिखोगे, then you will get a feel why we are studying about these data types and all. ठीक है. तो हमें एक प्रोग्राम लिखना है to add 2 numbers. अभी तो हमने एक सिंपल प्रोग्राम देखा था just to print the word hello on the screen. अब थोड़ा कैलकुलेशंस करते हैं. We'll take a very basic program. You just add 2 numbers and see the result. ठीक है. अब सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था, प्रोग्राम जब भी आप लिखते हो तो सबसे पहले आप क्या करते हो, हैश इंक्लूड से stdio.h. ना ऑनलाइन कंपाइलर्स में ये सब इंक्लूड करने की जरूरत नहीं पड़ती है. कुछ कंपाइलर्स में इस हेडर फाइल को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं पड़ती है. इट इज ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड, बट स्टिल जब भी आप प्रोग्राम लिखते हो, डू राइट दीज लाइन्स इन द प्रोग्राम. एग्जाम में अगर आप प्रोग्राम लिखने को आता है, यू इंक्लूड दीज 2 हेडर फाइल्स बिकॉज दे आर यूज्ड इन आवर प्रोग्राम. ठीक है. इसके बाद हम void main लिखते हैं. ये लाइन्स तो आपकी हमेशा कॉमन रहेगी. नाउ 2 नंबर्स ऐड करने का प्रोग्राम बनाना है, तो सपोज सबसे पहले हम डिक्लेयर करेंगे आपको कितने वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी. सपोज एक A, एक B. A और B वो वेरिएबल्स हैं which will hold the values of the numbers that have to be added. अब ऐड करने के बाद इनका रिजल्ट किसी में तो स्टोर होगा. सो सपोज आई विल टेक अ वेरिएबल C in which the result of A plus B, that is 30, will be stored. So how many variables will be required?
one for A, one for B, and one for C. So how we declare variables? We'll write the data type that is int A, comma B, comma C. अब इस लाइन से क्या होगा, 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर हो जाएंगे, तीनों इंटीजर टाइप होंगे. सो 2 bytes each will be assigned to A, B and C variables. ठीक है. अब वेरिएबल्स तो हमने डिक्लेयर कर लिए. अब हमें क्या करना है, अभी हम यूजर से इनपुट करने का आगे देखेंगे नेक्स्ट उसमें. अभी फिलहाल मैं लिख देती हूँ A is equal to 10. नाउ इस लाइन से हम क्या कर रहे हैं, आई एम जस्ट असाइनिंग वैल्यू 10 टू वेरिएबल A. ठीक है. फिर ऐसे ही मैंने कहा B is equal to 20. तो B को मैंने क्या असाइन कर दी, वैल्यू 20. फिर मैंने लिखा C is equal to A plus B. Now it's very simple. मैंने क्या किया, पहले तो 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए A, B, C. इन तीनों को 2 बाइट्स मेमोरी अलॉट होंगी बिकॉज इंटीजर्स को 2 बाइट्स आर अलॉटेड इन द मेमोरी. फिर हमने क्या किया, A को 10 वैल्यू अज्यूम कर ली, B में 20 वैल्यू अज्यूम कर ली, मींस असाइन कर दी वैल्यू. सो A में इनिशियली क्या होगा, इनिशियली दीज विल बी ब्लैंक. ओके. जैसे ही आप A में 10 वैल्यू स्टोर करोगे, इट विल स्टोर द वैल्यू 10 हियर, 20 हियर. C is equal to A plus B से क्या होगा, A and B की वैल्यूज ऐड होंगी. The processor will add the 2 values and store the result in the C variable, that is 30. आंसर यहाँ पे आ जाएगा. अब हमारा इसको आउटपुट को हमें प्रिंट करना है, तो प्रिंट के लिए हमने क्या पढ़ा था, प्रिंट F. नाउ सम इज, ये तो मैंने एक मैसेज दे दिया. Now this you need to understand. Percentage D लिखेंगे हम यहाँ पे. I'll explain you why we write this, and then I'll write C, and then last में get CH. अगर आप ऑनलाइन कंपाइलर पे वर्क कर रहे हो, आपको get CH वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है. Now when you run this program, you will get the result as output. आपका क्या होगा, जब आप इस प्रोग्राम को रन करोगे तो आउटपुट आएगा आपका sum is जैसा लिखा है आपने वो आ जाएगा. Now what is the meaning of this percentage D? और यहाँ पे ये C क्या है, कॉमा के बाद आपका इन्वर्टेड कॉमास क्लोज हुआ, उसके बाद कॉमा लगाया और फिर C लिखा. C वो वेरिएबल है, C ये क्या है, वेरिएबल है जिसमें हमारा रिजल्ट स्टोर्ड है, जिसकी वैल्यू हमें प्रिंट करनी है. ठीक है. तो C के अंदर वैल्यू क्या है, 30. सो this 30 वैल्यू इस वेरिएबल C की वैल्यू. नाउ C कैसा टाइप का है, इंटीजर टाइप. तो इंटीजर के लिए हम यहाँ पे ये जो परसेंटेज D लिया है, नाउ दिस इज अ फॉर्मेट स्पेसिफायर एंड परसेंटेज D इज फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर इंटीजर्स. ठीक है. अभी हम बाकियों के लिए भी पढ़ेंगे. तो जहां कहीं भी आपको, क्योंकि इसे ये फॉर्मेटेड आउटपुट है, तो जहां कहीं भी आपको इंटीजर वैल्यू प्रिंट करनी है, तो वहां आपको क्या यूज करना पड़ेगा, परसेंटेज D. जिस जगह पे आपने परसेंटेज D लिखा है, उस जगह पे C की जो वैल्यू है वेरिएबल की, दैट विल बी डिस्प्लेड. सो द सम आउटपुट विल बी सम इज, और यहाँ परसेंटेज D वाली जगह पे C की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी. सो द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम विल बी सम इज 30. ठीक है. सो दिस वाज अ स्मॉल प्रोग्राम. यहाँ आपको वेरिएबल का मतलब पता चला होगा, वेरिएबल हम क्यों यूज कर रहे हैं. वेरिएबल्स आर यूज्ड टू होल्ड वैल्यूज. या मैथ में भी करते थे, आप x y z लेते थे, से x इज इक्वल टू 10 अज्यूम कर लिया, y इज इक्वल टू, आप इक्वेशंस वाले क्वेश्चन करते थे, x y वहां पे यूज होता था. तो दोज आर वेरिएबल्स एंड वेरिएबल्स आर मेंट फॉर होल्डिंग वैल्यूज. तो यहाँ पे हमने ये वेरिएबल्स क्रिएट करे जस्ट टू होल्ड वैल्यूज, एंड यहाँ पे उसका कैलकुलेशन किया, दोनों वैल्यूज को ऐड किया, एंड देन इस लाइन के थ्रू आई हैव जस्ट डिस्प्लेड द आउटपुट ऑन द स्क्रीन. ठीक है. और ये परसेंटेज D क्या है, इट इज अ फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर प्रिंटिंग इंटीजर्स. ठीक. नाउ लेट अस सी द फॉर्मेट स्पेसिफायर्स फॉर अदर type of data also. So now we'll just write a complete list.
यहाँ मैं लिख देती हूँ डेटा टाइप, आई जस्ट मेक अ टेबल डेटा टाइप, देन यहाँ पे मेमोरी यूज्ड एंड यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है, दिस इज अ टेबल। अब यहाँ पे हम सारे डेटा टाइप्स लिखेंगे, यहाँ कितनी बाइट्स उनको अलॉट होती है और यहाँ उनका फॉर्मेट स्पेसिफायर। सो स्टार्टिंग फ्रॉम कैर, कैर के लिए आपका हो जाएगा मेमोरी यूज कितना होता है 1 बाइट एंड फॉर्मेट स्पेसिफायर इज %c, देन दिस इज स्मॉल c, ठीक है, स्मॉल केस में है। इंट के लिए आपका होता है 2 बाइट्स एंड इंट के लिए होता है आपका %d, देन लॉन्ग इंट, लॉन्ग इंट के लिए होता है आपका 4 बाइट्स एंड दिस इज %ld, L stands for long and D for integer, so LD। float के लिए आपका होता है 4 bytes and the format specifier is %f। डबल के लिए आपका होता है 8 bytes and this is %lf, ठीक है। तो सबसे ज्यादा मेनली ये ही डेटा टाइप्स यूज होते हैं। कैर के लिए %c, इंटीजर के लिए %d, लॉन्ग इंटीजर के लिए %ld, देन फॉर फ्लोट %f एंड डबल के लिए %lf, ठीक है। एंड एक और होता है आपका स्ट्रिंग के लिए, स्ट्रिंग अभी हम आगे पढ़ेंगे। स्ट्रिंग के लिए यू यूज इसका स्पेस पहले से स्पेसिफाइड नहीं होता है, डिपेंड्स ऑन 1 बाइट पर कैरेक्टर, ठीक है। तो स्ट्रिंग, क्योंकि इसे स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, आई कैन नॉट स्पेसिफाई इन एडवांस कि कितने बाइट्स वो कंज्यूम करेगा, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग। तो सपोज अगर हमारी स्ट्रिंग है हेलो, इट कंटेन्स 5 कैरेक्टर्स, सो इट विल बी अलॉटेड 5 बाइट्स इन द मेमोरी। एंड इसके लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होता है दैट इज %s। सो दीज आर द फॉर्मेट स्पेसिफायर्स यूज्ड। तो जब भी कभी हम प्रिंट करते हैं कोई वैल्यू, किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करते हैं, तो यू हैव टू यूज द अप्रोप्रिएट फॉर्मेट स्पेसिफायर। जैसे अभी हमने जो प्रोग्राम लिखा था उसमें भी यूज्ड %d, ठीक है। और अगर लॉन्ग इंटीजर प्रिंट करना होगा तो वी विल यूज ld, कैरेक्टर के केस में वी विल यूज %c। सो सपोज इफ आई राइट अ प्रोग्राम, मैंने एक डेटा टाइप, पूरा प्रोग्राम में नहीं लिखती हूँ, आई जस्ट टेक अ वेरिएबल ऑफ कैरेक्टर टाइप से a नाम का एक वेरिएबल लिया और उसमें वैल्यू मैंने स्टोर कर दी x, ठीक है। सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल a of x type. So how many bytes will be allotted to this variable a? 1 byte in the memory. अब मेरे को अगर ये वैल्यू को एज इट इज प्रिंट कराना है, सो व्हाट आई विल राइट, जस्ट आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज मैं बताना चाहती हूँ आपको कि ये %c कैसे यूज होगा आपका। तो हमने लिखा प्रिंट f द कैरेक्टर इज, ये तो एक मैसेज है। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया इस जगह पे मेरे को वैल्यू प्रिंट करानी है कैरेक्टर की। तो कैरेक्टर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या यूज होता है %c, सो आई राइट %c इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके, फिर मैं वेरिएबल का नाम लिख दूंगी यहाँ पे a एंड सेमीकोलन। तो आपका आउटपुट कुछ ऐसा आएगा, द कैरेक्टर इज x। ये x किस जगह पे इंट्रोड्यूस हो गया, जहां पे %c लिखा था हमने, तो ऐसा आउटपुट आएगा, द कैरेक्टर इज, कोलन का साइन आएगा और जहां आपने %c लिखा था उस जगह पे a वेरिएबल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो जाएगी और a की वैल्यू क्या थी आपकी x। सो दिस इज द आउटपुट ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन। अगर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, से if the variable we are taking is of if we are taking a variable of say float type, से पाई ले लीजिए, तो पाई के लिए हम कैसा वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, फ्लोट से पाई
इज इक्वल टू 3.14। ठीक है, वैसे तो पाई कांस्टेंट होता, लेकिन चलो हमने उसे एक वेरिएबल की तरह डिक्लेयर कर दिया। अब मेरे को अगर पाई की वैल्यू प्रिंट करनी है तो मैं क्या लिखूंगी, प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ पाई इज। नाउ सी दिस इज अ मैसेज दैट आई एम गिविंग, इसका कोई उससे मतलब नहीं है, ये आप अपने हिसाब से कोई भी मैसेज दे सकते हो। दिस मैसेज विल बी प्रिंटेड एज इट इज। अब इस जगह पे आपकी वैल्यू किस टाइप की है, यहाँ पे जिसे आपको प्रिंट करना है फ्लोट टाइप। तो फ्लोट के लिए जो आपका फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज होता है दैट इज एफ। सो यू राइट परसेंटेज एफ इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा पाई, द नेम ऑफ द वेरिएबल। सो द आउटपुट नाउ विल बी वैल्यू ऑफ पाई इज कोलन, और जहां पे आपने परसेंटेज एफ लिखा था वहां पे पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट होकर के प्रिंट हो जाएगी। सो दैट विल बी 3.14। सो दिस विल बी द output you will get. So this is how you use the format specifier. So we have learned percentage C for characters, percentage D for integers, percentage LD for long integers, percentage F for float, and percentage LF for double. ये ही सबसे ज्यादा डेटा यूज होते हैं। एंड अनसाइंड के लिए यू यूज परसेंटेज यू। ठीक है, तो अगर अनसाइंड कैरेक्टर है तो अनसाइंड कैरेक्टर के लिए हो जाएगा परसेंटेज यू सी। अनसाइंड इंटीजर के लिए हो जाएगा परसेंटेज यू डी। ठीक है, यू फॉर अनसाइंड, डी फॉर इंटीजर। सो दिस इज हाउ द फॉर्मेट स्पेसिफायर्स आर यूज्ड। You can use the appropriate format specifiers. जैसे जैसे आप आगे अभी प्रोग्राम्स लिखोगे these things will be clear after that. जैसे जैसे आप प्रोग्राम्स लिखोगे उसको ज्यादा से ज्यादा यूज करोगे, so these things will be very much clear. ठीक है, so today we have studied about data types in detail and this is a very important topic. Data types के ऊपर आपका एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, मतलब मे बी अ 10 मार्क का क्वेश्चन, अ डिटेल्ड क्वेश्चन ऑन ब्रीफली एक्सप्लेन द प्राइमरी डेटा टाइप्स इन सी। तो आपको पूरा एक्सप्लेन करना है। पहले तो डेटा टाइप्स कितने तरह के होते हैं, सो यू हैव टू एक्सप्लेन ऑल ऑफ देम। कैरेक्टर टाइप, इंटीजर टाइप, फ्लोट टाइप, वॉइड टाइप। फिर उसमें भी आपको बताना पड़ेगा कि कैरेक्टर टाइप के सब टाइप्स क्या होते हैं, सो साइंड एंड अनसाइंड। देन इंटीजर के टाइप्स क्या होते हैं आपके, इंट, शॉर्ट इंट एंड लॉन्ग इंट। एंड फ्लोट के वेरिएशंस क्या क्या होते हैं आपके, फ्लोट, डबल एंड लॉन्ग डबल। And you have to explain them how many bytes they consume in the memory and what are the format specifiers used for them. ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या एक्सप्लेन करना है, all data types with the amount of memory used and format specifiers, both signed and unsigned. मीन्स जितना अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो सारा कुछ आपको एक्सप्लेन करना है इस आंसर में। एंड दिस इज अ 10 मार्क क्वेश्चन। बोर्ड में ये क्वेश्चन काफी आता है। डेटा टाइप्स के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करिए and it is a 10 marks theoretical question, so it's a direct question. You just have to explain in depth what are data types and usko aapko pura explain karna padega. So I'll end the today's class here and next class mein we will study more about variables, constants, and then we'll write some more programs and we'll learn how to टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर। अभी तक जो हम प्रोग्राम लिख रहे थे इसमें हमने क्या किया था, वी आर जस्ट अज्यूमिंग अ वैल्यू, वी आर जस्ट असाइनिंग अ वैल्यू डायरेक्टली इन अ वेरिएबल
तो इससे क्या होगा, जितने बार आप प्रोग्राम रन करोगे सेम वैल्यू देगा, वो सेम आंसर देगा. नाउ यू कैन टेक अ वैल्यू फ्रॉम द इनपुट द वैल्यू फ्रॉम द यूजर ऑल्सो, देन ओनली इट मेक सेंस. जैसे मान लीजिए आप एक प्रोग्राम लिख रहे हो दो नंबर्स को सम करने का, ठीक है. अभी जो मैंने प्रोग्राम आपको लिख के दिखाया, जितने बार आप उस प्रोग्राम को रन करोगे, इट विल एवरी टाइम इट विल गिव द आंसर सम इज 30. नाउ दैट प्रोग्राम डजंट मेक सेंस, क्योंकि इसे आप दो फिक्स्ड वैल्यूज को ऐड कर रहे हो हर बार, तो उस प्रोग्राम की कोई वैल्यू नहीं है. नेक्स्ट टाइम वील सी हाउ वील टेक द वैल्यूज फ्रॉम द यूजर. द यूजर विल बी प्रॉम्प्टेड टू एंटर टू नंबर्स. जो भी नंबर्स यूजर एंटर करेगा, कंप्यूटर उसका आपका प्रोग्राम उन दोनों नंबर्स को ऐड करके और उसी समय उसका जो भी आंसर है उसको प्रिंट कर देगा. ठीक है. So that we'll learn in the next lecture. So I'll just end the class for today.